Okay, so in this particular chapter, this is a very similar chapter to the financial market and all जो हमने पढ़े थे chapters, right? उन्हीं chapters से मिलता हुआ ये chapter है. Now यहाँ पे we are talking about a financial market. What is a financial market? Financial market is a place where there is buying and selling of shares happening. Okay, so financial market में क्या होता है? Financial market में we have buying and selling of shares. Okay, share market जहाँ पे होती है. Okay, where the money is either where the money is always in flow. Okay, shares or money, you can say. Specifically finance is related to money, right? So where the money is always in flow, that type of a market is called as the financial market. Okay, now businesses में क्या होता है? In businesses we say that the money is considered to be surplus or deficit. So the same way in a financial market there will be businesses involved. Okay, there will be businesses that will be involved. There will be investors, there will be lenders involved. Okay, इनके साथ साथ there will be some lenders who will be involved. And what is their purpose to be involved in this money transactions and all? इनका सबका sole reason यही है, to provide sale of goods and services. Sale of goods and services is what they want to do. Okay. Okay, so financial market क्या होती है? एक ऐसी प्लेस जहाँ पे money is always kept in flow, either in surplus or deficit. And the people who are involved are the businesses, investors and lenders. Okay, and what is their aim? Their aim is to usually have their aim is to usually provide sale of goods and services to the other people in the country. Okay, so now money is always in flow. कैसे money flow में हो सकती? By doing the transactions. When we are doing the transactions, it is then that the money is supposed to be in flow. Okay, uh, so there'll be money borrowers, there'll be money lenders and stuff will be there. Okay, so that's about a financial market. Okay, now बिफोर दिस इज़ गोइंग टू बी देयर, राइट ना. अभी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट काम कैसे करती है, मतलब क्या क्या चीज़ें होते हैं. सो इन्वेस्टर पैसे देता है लेंडर को, लेंडर लेता है पैसे और वो बिजनेस में लगाता है, अपना बाइंग एंड सेलिंग के अंदर लगाते हैं. ओके, and money becomes one of the most important asset over here, because it is the one which is providing security to the other businesses, right? So here this money that we have in a financial market is the asset itself. इसको financial market को चलाने के लिए you don't need a place, you don't need labor, you don't need capital and all like that. It is the asset of this particular business is money itself. Okay, अब जैसे कि मेरे पास कौन सी स्टोर है, मेरे दिमाग में कौन सी. ओके, मेरे पास राइस ग्रेन की स्टोर है. ओके, तो मेरा एसेट क्या होगा यहाँ पे? माय मेजर एसेट और माय स्टॉक्स इन्वेंट्री इज़ द राइस ग्रेन इटसेल्फ, राइट. बट यहाँ पे क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट की बात हो रही है, तो द बिगेस्ट एसेट ऑफ माई बिजनेस इज दिस पर्टिकुलर थिंग इटसेल्फ. ओके, ना फाइनेंशियल मार्केट्स यूजुअली दो तरीके के होते हैं. टाइप्स कितने हैं इसके? देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. व्हाट आर द टू टाइप्स? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द मनी मार्केट. Okay, it is called as the money market. Okay, and the second one is called as the capital market. Okay, okay, money market and capital market is there. What do you understand by the term money market? मनी मार्केट का मतलब होता है कि मनी जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट जो कुछ भी है, या फिर कुछ भी हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एसेट ओवर हियर? इट इज़ द मनी इटसेल्फ विच इज़ लेंड. Okay, someone is going to lend this money to the other person for a short period of time. Money market में it is going to be lent to a person for a period of 1 year and so for a very short period of time. Okay, दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज योर मनी मार्केट. ओके, मनी मार्केट में क्या हो रहा है? मनी को हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फाइनेंशियल एसेट के जैसे हम किसी को देते हैं, मतलब एक अमानत के जैसे हम किसी को देते हैं. ओके, नाउ व्हेन यू प्रोवाइडिंग मनी टू अ पर्सन, क्या होता है? आपको कुछ उसका काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट चाहिए ना, आपको कुछ एक चाहिए कि हाँ आपने पैसा दिया है, द पर्सन इज़ गोइंग टू गिव इट बैक टू यू करके. सो तो यहाँ पे क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है. ओके, सो और कौन देते हैं ये लोग? यूजुअली द बिजनेसेस टेक फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे आर रनिंग आउट ऑफ कैश. ओके, बिजनेसेस लेते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये लोग दे आर रनिंग आउट ऑफ कैश. ओके,
businesses are the ones who go for the money market. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, money is being provided for a short period of time, less than a year or up to a year maximum will be the maturity period for it. Okay, यहाँ पे ये मनी जो भी हम ली जाती है, जो भी दिया जाता है, इट इज़ नॉट गिवन इन कैश, इट इज़ नॉट गिवन एज मनी इटसेल्फ। इंस्टेड इसको हम लोग कैसे देते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिए जाते हैं। नाउ दीज टर्म्स आर न्यू टू यू। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जैसे हम लोग देते हैं फर्स्ट थिंग, या फिर हम इसको एक प्रॉमिसरी नोट के जैसे देते हैं। ओके, प्रॉमिसरी नोट के जैसे देते हैं, या हम लोग इसको ट्रेजरी बिल्स के जैसे देते हैं, या फिर लास्ट हम इसको देते हैं एज अ कमर्शियल पेपर। ओके, okay, these are the ways in which we usually give the money in the money market. Now you may ask, what is the bills of exchange, what is this promissory note करके पूछोगे आप, right? So let's study these in detail. So if I'm talking about this promissory note, पहले bills of exchange की बात करते हैं. So bills of exchange जो है एक ऐसा क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या फिर एक पेपर होता है जहाँ पे देर इज़ वन पर्सन सपोज टू पे अ सम ऑफ मनी टू द अदर पर्सन। ओके, जैसे कि गो अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि असद को पैसे चाहिए। असद को कितने का लोन चाहिए, असद को पैसे चाहिए ऑफ 50,000, बट हु इज़ गिविंग इट, शिफा इज़ गिविंग इट। ओके, शिफा बड़ी बहन है, शी कैन गिव इट, नो प्रॉब्लम। ओके, असद शिफा इज़ गोइंग टू गिव अ 50K का अमाउंट टू असद। फाइन, नाउ हो गया, ये तो दे दिया। अब क्या करेगा, अब असद ने ले लिया पैसे शिफा के पास से। नाउ व्हाट इज हैपेंड इज असद ने पैसे देना है। नाउ असद हैज़ टू गिव दिस मनी बैक टू शिफा। ओके, तो अब क्या करते हैं, इस टाइम पे असद विल मेक अ डॉक्यूमेंट। ओके, विल गेट अ डॉक्यूमेंट, सॉरी, शिफा विल गेट अ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग के असद हैज़ टू गिव दिस मनी बैक टू मी करके। ओके, आफ्टर द एक्सपायरी डेट ऑफ सो एंड सो करके ये लिखा जाता है। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, शिफा ने पहले असद को 50K दे दिए, उसके बाद शिफा ने एक ऐसा पेपर या डॉक्यूमेंट बनाएगी जिसके अंदर लिखा होगा कि आफ्टर अ ईयर और आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम असद इज सपोज टू पे बैक दिस अमाउंट टू मी करके लिखा जाता है। ओके, सो दिस इज़ वॉट इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हो गई बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं। ओके, प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है wherein you can make the documents stating that this person has to pay me the amount and कभी भी मैं जब demand करूँगा this person has to give it back to me. Okay, now again this is also kind of a note, एक paper बनाया जाता है, एक document बनाया जाता है promissory note में, wherein what you're doing is, okay, this promissory note पे वी गोइंग टू राइट कि कितना अमाउंट कौन लेगा और कौन देगा, कितने टाइम के बाद दिया जाएगा। ओके, नाउ दिस डॉक्यूमेंट हैज़ अ much more kind of validity, or you can say this document has a kind of much more what say, उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। इफ़ सपोज़ कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में असद और शिफा ने बना दिया है और असद देने से मना कर देता है, देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, शिफा कैन नॉट फाइल अ केस बेस्ड ऑन दैट। ओके, पर अगर शिफा ने प्रॉमिसरी नोट बनाया है कि ये बंदे ने मुझसे पैसे लिए हैं एंड ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी एंड स्टफ करके, देन शिफा इज़ लाइबल, असद जब नहीं देता है तो शिफा इज़ लाइबल टू आस्क the bank and whatsoever the people are to give to file for the case and get her money back. Okay, so promissory note में हम usually details डालते हैं. What are the possible details हम लोग जो डालते हैं is I Shifa is no, I Asad, because you are the one who's going to pay back, right? So I Asad agrees to pay so and so amount on so and so date with so and so interest to Shifa करके लिखा जाएगा और दोनों की सिग्नेचर होगी इसके ऊपर।
दिस इज़ हाउ अ प्रॉमिसरी नोट विल बी. इट विल बी अ नॉर्मल पेपर जिसके ऊपर एक नॉर्मल नहीं मतलब एक पेपर होता है जहाँ पे द बोरोवर के नाम से बनाया जाता है. ओके, आई असद विल बी पेइंग बैक करके होगा. ओके, ही विल राइट इट डाउन कि आई विल बी पेइंग दिस अमाउंट बैक एंड सो डेट पे टू सो एंड सो इंटरेस्ट करके लिखा जाता है इसके अंदर. दैट इज़ व्हाट इज़ योर प्रॉमिसरी नोट. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, असद को पता चल गया व्हाट इज़ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अगेन, कबीर मत करो. Okay, a bill of exchange is something wherein we have okay, कबीर मत करो बेटा. नानी मम का डोर बंद करो जाके. सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी ये होता है, शिफाई और असद के बीच में बनाया जाता है जहाँ पे ये होता है. नाउ ये जो प्रॉमिसरी नोट है, इट इज़ मच मोर लीगली यू कैन बी यूज्ड एंड वी कैन बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वेन एवर द पर्सन डिनाइज टू पे, बिकॉज ये असद के नाम से ही बनाई जा रही है ये प्रॉमिसरी नोट. तो असद यहाँ पे पे कर सकता, असद को हम लीगैलिटीज़ में पुल इन कर सकते हैं. ओके, सो ये चीज़ थी.